प्रोग्राम सेल डेथ इन प्लांट्स। प्रोग्राम सेल डेथ एक जेनेटिकली प्रोग्राम्ड कैस्केड ऑफ इवेंट्स है जो कि सेल डेथ के लिए नेसेसरी है। इसका अल्टीमेट एम सेल डेथ नहीं है, बट इट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, तो हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इन ऑल द फेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, प्रोग्राम सेल डेथ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, whether they are reproductive phases or they are vegetative phases, such as parenchyma formation, leaf senescence, hypersensitive response, or if we talk about reproductive phase, such as in embryo development, degeneration of suspensor, megaspore formation, and endosperm and aileron layer, PCD. PCD is not limited only to plants, but it takes place in all eukaryotes. For example, in plant, animal, fungi, and each have evolved a different mechanism for the cellular suicide, which is known as PCD. PCD is a genetically regulated process and it is a well orchestrated sequence of events which is required for elimination of undesirable cells. And इसका ultimate aim development and survival है. PCD के लिए सिग्नल इंट्रिंसिक भी हो सकते हैं एंड एक्सट्रिंसिक भी हो सकते हैं। इंट्रिंसिक सिग्नल जैसे कि एरर्स इन डीएनए एप्लीकेशन, और अगर हाइपोक्सिया कंडीशन हो, which is also known as low oxygen level, so it can induce parenchyma formation which requires PCD. It can be in the form of growth deprivation factors which induces cell to undergo PCD. Extrinsic signal include lethal events such as pathogen attack which induces hypersensitive response and causes PCD of the cell. PCD को हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि अपोप्टोसिस लाइक PCD, ऑटोफैगी एंड नेक्रोसिस। If we talk about 3 broad categories of PCD in plants specifically, in plants we do not use the term apoptosis but use the term apoptosis like PCD. हम इसमें ट्रू apoptosis वर्ड क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, इसके 3 मेन रीजंस हैं दैट वी विल सी इन आवर अपकमिंग स्लाइड्स। apoptosis like PCD के मेन जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं वो है प्रोटोप्लास्ट श्रिंकेज, साइटोस्केलेटन बंडल, इट मींस कंडेंसेशन ऑफ साइटोस्केलेटन, एंड डीएनए क्लीवेज। डीएनए क्लीवेज के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं जिससे हम कैरियोहेक्सिस कहते हैं। नेक्रोसिस, नेक्रोसिस एक सेल डेथ है जिसमें कि इंफ्लामेशन इन्वॉल्व होता है। इसमें इंफ्लामेशन क्यों होता है? द मेजर रीजन इज साइटोप्लाज्म और सेलुलर कंटेंट लीकेज। Because of plasma membrane rupturing, all the cellular content get leaked out in the surrounding interstitial tissue and उसकी वजह से inflammation होता है। But because in apoptosis like PCD or also in apoptosis, rupturing is absent and there is no cellular content leakage in the interstitial surrounding, so here inflammation is absent. In autophagy, here it involves the role of vacuoles, lysosomes, which are important for the autophagy process. It is a cell death where the formation of phagosomes or autophagosome is important for the cytoplasm disappearance or degradation. Here is a schematic representation of 3 types of PCDs. First is apoptosis, second is necrosis, and third is autophagy. Apoptosis basically include shrinkage and condensation. Shrinkage where protoplasm is shrink and condensation where nuclear material get condensed. Condensation of nuclear material is also called as pycnosis. Finally, blabbing of the plasma membrane occurs. Now, here what you understand by blabbing? Blabbing का मतलब है plasma membrane के ऊपर ये bulges बन जाना और blister like appearance देना. So, this is called as blabbing. Finally, the cell undergoes and it degrades into small bodies called as apoptotic bodies. Cellular content is reside within these apoptotic bodies and does not leak to the interstitial tissue. So, inflammation is absent. Necrosis. Necrosis is a type of cell death. Another form of necrosis, which is programmed form of cell death, is called as necroptosis. But majorly, necrosis is not a programmed cell death, it is an unprogrammed cell death due to cell injury. If we talk about the programmed form of necrosis, it is called as necroptosis. Normally, necrosis involves swelling of the cell which lead to rupturing of the plasma membrane. अगर कोई भी चीज एक लिमिट के बाद भी स्वेल होती है तो वो रप्चरिंग हो जाएगी उसकी आउटर बाउंड्री की। Similarly, here the rupturing of the plasma membrane occur and all the cellular content get leaked to its interstitial surrounding, जिसकी वजह से cellular content release हो जाता है and inflammation होता है। Autophagy
As I told you that there is very important role of autophagosomes and lysosomes which lead to the degradation and cytoplasmic disappearance of the cell. The major point about apoptosis like PCD is why we are not using the term apoptosis in plant and why we are using apoptosis like PCD. What are the three major reasons? There are three major reasons for this. First is that there is presence of rigid cell wall, which do not allow formation of apoptotic bodies as it occur in the animal cells. Apoptotic body formation is very important as we know that all the cellular content which is degraded reside in these apoptotic bodies. But in plant, as there is no formation of apoptotic bodies. Second reason is that there are no phagocytic cells. In animal cell, these apoptotic bodies which are formed are engulfed by phagocytic cells and are degraded within lysosomes of these phagocytic cells. But plants में ये phagocytic cells absent होती है. Third reason is in plants there are no true caspases present. Caspases are the proteolytic enzyme. These are cysteine aspartate specific proteases which are necessary for the apoptosis process. But in plant, true caspases are absent and another similar enzymes or family of proteases are present which mediate the PCD. So these are the three main reasons which are responsible for apoptosis like PCD in plants. Now, what are the hallmark features of apoptosis like PCD? The first feature is shrinkage of the plasma membrane, or you can call it as shrinkage of the protoplast. Second is membrane labbing. As I told you, formation of bulges over the plasma membrane or blister-like appearance to the plasma membrane. Third is condensation of cytoskeleton. Fourth is DNA laddering. What is DNA laddering? As I told you that cleavage of the nuclear material take place, जिसे हम karyohexis भी कहते हैं. When karyohexis occur and जब हम उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं, so we get our nuclear material in the form of segments arranged into a particular ladder type sequence according to their sizes, which is called as DNA laddering. What is PS externalization? PS externalization basically means flipping of phosphatidylserine. In a cell plasma membrane, there is a bilipid layer. In the inner leaflet, there is presence of a lipid called phosphatidylserine. Exclusively and generally, it is present towards the inner leaflet or towards the cytoplasm in a cell. But in a cell to undergo apoptosis, phosphatidylserine flip हो जाता है towards the outer leaflet or towards the exoplasmic site, and it acts as a marker. It acts as a marker for a cell to undergo apoptosis. So PS externalization occurs. Cytochrome C release in an animal cell in intrinsic apoptotic pathway. Release of cytochrome C from mitochondria play an important role in apoptosis. Similarly, in plants, cytochrome C also released from mitochondria, but here it does not play such an important role and acts simply as a chemical change. Protease activation. As we all know, in plants, true caspases are absent. And instead of true caspases, there are a family of proteases such as metacaspases, vacuolar processing enzymes, substilicin-like proteases, which we are going to see in the upcoming slides. And these proteases are necessary for the degradation of the cellular contents. Increase in ROS. Increase in ROS एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स का, जो कि हम जनरली नोटिस करते हैं. जब हमने बात की थी कि एक्सट्रिंसिक स्टिमुलाई पैथोजन अटैक के फॉर्म में भी हो सकता है, तो जब पैथोजन अटैक होता है तो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स इंड्यूस होता है दैट लीड्स टू पीसीडी, एंड उस दौरान हमें इंक्रीज इन आरओएस देखने को मिलता है. हमें नेक्स्ट जो चेंज देखने को मिलता है वो होता है डिक्रीज इन एटीपी. एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाता है क्योंकि जो कि मेजर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं दे कम टू हॉल्ट एंड एनर्जी प्रोडक्शन इज बिकम वेरी लेस. One major change is the formation of DAMP. What are DAMP? हमने बात की थी पैथोजन अटैक की. पैथोजन अटैक जब भी होता है तो ये अपोप्टोसिस का सिग्नल देता है. अपोप्टोसिस और वी कैन से प्रोग्राम सेल डेथ का सिग्नल देता है. तो अगर सेल को अपने आप को बचाना है तो वो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल सिक्रीट करता है एज अ इम्यून रिस्पॉन्स, जिसे हम कहते हैं डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स. सो इनका इंक्रीज लेवल हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग पीसीडी. There is a description of these hallmarks which we have discussed in our previous slide. We talked about DNA laddering.
स्ट्रॉन्ग क्रोमेटिन कंडेंसेशन जिसे हम पिकनोसिस भी कहते हैं, रिलीज ऑफ साइटोक्रोम सी, increase in ROS species, enzyme with caspase-like activity. It is not caspase, but caspase-like activity. Generation of autophagic vacuoles, degradation of organelles, extensive vacuolation. In plants, vacuole play a very important role in PCD. How? Vacuole एक act करता है for reserve of the proteases. And second, rupturing of vacuole induces cellular content degradation. So both these points are very important in apoptosis like PCD in plants. Next is the racinosomes. Development of racinosomes. Racinosomes are specialized organelle जो कि हमें कैस्टर बीन में देखने को मिलते हैं. कैस्टर बीन सीड में हमें रिसिनोसोम्स देखने को मिल सकते हैं. एंड रिसिनोसोम्स भी एक वैक्यूल की तरह ही इसका फंक्शन होता है. ये रिजर्व होता है प्रोटीएसेस का. सीड जर्मिनेशन के वक्त रिसिनोसोम्स प्रोटीएसेस को सिक्रीट करता है फॉर दी सो दैट मोबिलाइजेशन हो सके स्टोर फूड एंड रिजर्व का, एंड इट कैन हेल्प इन सीड जर्मिनेशन. बट हियर racinosomes are required for reserve and secreting proteases so that it can help in PCD. Nucleases and ROS increases, and at the end of the PCD, the cell is completely digested. And this is such a coordinated and regulated way that uh, beside plant have cell wall, so they have evolved their own PCD process which help them to induce PCD without the help of any apoptotic regulator and phagocytic cells which are not present in the plants. This slide represents कि PCD इतना important process है कि plant की दोनों ही vegetative and reproductive phase में ये बहुत ज़्यादा immensely important role play करता है. PCD एक fundamental cellular process है जो कि reproductive phase में, if it is prezygotic or post-zygotic development, such as tapetal layer degeneration, daughter cell degeneration, antipodal synergy degeneration, pollen tube degeneration, and aileron layer formation. Or if it is vegetative phase where xylogenesis or calcary element differentiation is required, so it is very important. PCD is also observed in somatic embryogenesis. Somatic embryogenesis में हमें जो एक मेजर फीचर होता है कि जो पेरेंट प्लांट होता है या फिर मदर प्लांट होता है उसका अपने सोमेटिक एम्ब्रियो से कोई भी कनेक्शन नहीं रहता है. मतलब कोई भी मैटरनल कनेक्शन नहीं होता है एक सोमेटिक एम्ब्रियो और मैटरनल एक्सप्लांट के बीच में. क्यों? क्योंकि सिम्प्लास्ट सेल टू सेल ट्रैफिकिंग जो होती है वो फिनिश हो जाती है ड्यू टू पीसीडी एंड इस कनेक्शन को तोड़ दिया जाता है. सो दिस इज द रीजन व्हाई पीसीडी occurs in the somatic embryogenesis. Second is, in somatic embryo there is no suspensor. So PCD of embryo suspensor also occur in somatic embryogenesis. जैसे कि हमने बात की थी रिप्रोडक्टिव फेज एंड वेजिटेटिव फेज, दोनों ही फेसेस में पीसीडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हम देख पा रहे हैं इन फीमेल it is playing very important role for degeneration of antipodal and synergid cell nucellus degeneration. In male for pollen in self incompatibility, pollen tube burst, tapetum degeneration. It plays a very important role. In vegetative phase, seed and development and germination, vegetative development such as xylem trachea vessel formation, parenchyma cell formation, and senescence. In this diagram, the previous slide information is represented in the form of diagram. As I told you, plays very important role in somatic embryogenesis and suspensor degeneration, xylogenesis, trachea element differentiation. In senescence, it plays a very important role. Abscission, root cap formation, aileron layer degeneration, central endosperm degeneration, and suspensor degeneration in seed. Synergids and pollen tube rupturing, pollen self-incompatibility, tapetum degeneration, degeneration of nucellus and antipodal cells, degeneration of non-functional megaspore, dehiscence of the anther. So in all these processes, PCD plays a very important role. Now, regulation of PCD in plants. I told you that in plants, two caspases are absent. So there must be some enzymes which mediate the PCD. Similar type of enzymes are present in the plant which are family of plant proteases called as metacaspases. Metacaspases are also cysteine proteases like caspases, and they are similar to these caspases. Second is substitution-like proteases, which are serine proteases. They have serine in their catalytic site. And third is
BPE family of proteases, which are vascular processing enzyme of proteases. Now, second regulator is BCL2 associated ethanogen family. BCL2 associated ethanogen family एक evolutionary conserved family है कोचेपरॉन्स की, जो जिसमें कि स्पेशलाइज्ड डोमेन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैक डोमेन। ये बैक डोमेन हेल्प करता है इन्हें इंटरेक्ट करने से HSP70 के साथ, एंड ये मैमल्स एंड प्लांट्स दोनों में ही प्रेजेंट होती है। इसका रोल हमें आगे देखने को मिलेगा। हाइपरसेंसिटिव मीडिएटेड पीसीडी में हम देखते हैं इट अकर्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस, एंड ये लोकलाइज प्लांट सेल डेथ होती है अपॉन इंस्टेंट कॉन्टेक्ट विद एनी एवायरुलेंट पैथोजन। और जो नेक्रोट्रॉपिक पैथोजन मीडिएटेड सेल डेथ होती है, इट इज बिकॉज ऑफ द सेल death caused by hydrolytic enzyme and host selective toxin which are present in the cell. So these are some regulators of PCD. Now, family of plant proteases. We have discussed about three proteases, metacaspase, that are cysteine proteases similar to the caspases, substicillin-like proteases which are serine proteases, and BPE family of proteases which are vascular processing enzymes. There are two types of metacaspases, type 1 metacaspases and type 2 metacaspases. Type 1 metacaspases, here ATMC is written. What is ATMC? AT stands for Arabidopsis thaliana and MC stands for metacaspases. Now, metacaspases. So metacaspases are similar to caspases present in animal cell, and these are also the cysteine proteases. They are similar to the family of caspases and are structurally related to caspases, playing a central role in PCD. Metacaspases, इसके एग्जांपल है पैपिन लाइक सिस्टीन प्रोटीएसेस एंड वैक्यूलर प्रोसेसिंग एंजाइम्स भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रोटीएसेस है जो कि मेन रोल प्ले करते हैं पीसीडी में। अगर हम मेटाकैस्पेसेस की स्ट्रक्चर की बात करें तो कैस्पेसेस की तरह इनमें भी कंजर्व्ड डायड ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, सिस्टीडीन है हिस्टीडीन। तो इनमें टू कैटालिटिक डायड होते हैं, सिस्टीन हिस्टीडीन, और एक प्रोडोमेन होता है जिसे हम P20 डोमेन है, P10 डोमेन कहते हैं। सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी की बात की तो ये कैस्पेसेस से डिफरेंट होती है। कैस्पेसेस में जो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी होती है कि वो एस्पार्टेट रेसिड्यू के बाद में ही क्लीव करते हैं, बट मेटाकैस्पेसेस आर्जिनिन और लाइसिन रेसिड्यूज के बाद क्लीव करते हैं। इसका फंक्शन पीसीडी में है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स में है एंड डेवलपमेंट में है। एंड इसके टाइप्स है टाइप 1 मेटाकैस्पेसेस एंड टाइप 2 मेटाकैस्पेसेस। टाइप 1 मेटाकैस्पेसेस में प्रोडोमेन होता है जो कि प्लांट एंड फंजाई में होते हैं, एंड टाइप 2 कैस्पेसेस में एंड टर्मिनल प्रोडोमेन इज एब्सेंट जो कि सिंगल सेल यूकेरियोट्स जो कि प्रोटोजोआ होते हैं उनमें होता है। वैक्यूलर प्रोसेसिंग एंजाइम जो है वो अनदर फैमिली है प्लांट प्रोटीएसेस की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये जो रिजर्व स्टोरेज होता है वैक्यूलर प्रोसेसिंग एंजाइम का, जो कि हमें नेम से ही समझ में आ रहा है, वैक्यूल्स में होता है, और ये सीड डेवलपमेंट प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सीड को डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबस्टिस लाइक सीरीन प्रोटीएसेस जो है वो सीरीन प्रोटीएसेस है जिनकी कैस्पेस लाइक एक्टिविटी होती है, इन्हें हम सैस्पेसेस भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पीसीडी रेगुलेशन में। एवेनासेटेरा और ओट में अभी तक हमें टू टाइप ऑफ सैस्पेसेस मिले हैं, सेस1 एंड सेस2, जिनका रोल है पीसीडी में। अगर हम लोकलाइजेशन की बात करें प्रोटीएसेस की, सो हमें 3 लोकेशन इनकी देखने को मिलती है इन द प्लांट सेल, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स एंड इंटरसेलुलर फ्लूइड। साइटोप्लाज्म में हमें मेटाकैस्पेसेस देखने को मिलते हैं, इन वैक्यूल्स वैक्यूलर प्रोसेसिंग एंजाइम देखने को मिलते हैं, एंड इन द सराउंडिंग फ्लूइड और एपोप्लास्ट रीजन और इंटरस्टिशियल रीजन हमें पैरास्पेसेस देखने को मिलते हैं। एपोप्लास्ट रीजन सच एज सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच का रीजन, तो इसमें पैरास्पेसेस देखने को मिलते हैं। और जब भी पीसीडी का इंडक्शन होता है सो दे आर induced to come to cytosol and induce the PCD response. So these are the diverse localization of proteases in the plant cell. Now what are the role of vacuole? As I told you, vacuole बहुत important role play करता है in the PCD. क्लोरोप्लास्ट जो कि वैक्यूलर मेम्ब्रेन है, अगर वो रप्चर हो गई तो जितने भी प्रोटीएसेस वैक्यूल के अंदर है वो रिलीज होंगे और सेलुलर कंटेंट को डिग्रेड करने का पोटेंशियल रखते हैं। जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो टोनोप्लास्ट लाइज्ड होती है और अपने लैक्टिक एंजाइम सीक्रेट करती है जिससे कि रैपिड सेल डेथ हो जाती है। इसका मेजर एग्जांपल है हाइपर सेंसिटिव रिस्पांस में जब टोबैको मोज़ेक वायरस का इन्फेक्शन होता है टोबैको में। हमने सेकंड रेगुलेटर की बात की थी, वो थे बैक फैमिली एंड रोल इन पीसीडी। बैक फैमिली है BCL2 एसोसिएटेड एथेनोजीन फैमिली। हमने बात की थी कि इसमें एक स्पेशलाइज्ड डोमेन होता है जिसे बैक डोमेन कहते हैं, एंड ये जो डोमेन होता है हेल्पफुल होता है इन दी बाइंडिंग ऑफ चेपरॉन्स HSP70।
ये कोचेप्रॉन फैमिली है जो कि इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड है और ये हेल्प करते हैं सेल डेथ में और स्ट्रेस रिस्पॉन्स में। डिफरेंट फैमिली है बैक की जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को प्रमोट करती है। जो बैक 6 है वो प्रोटोलाइटिकली एक्टिवेटेड होता है एस्पार्टाइल प्रोटीज की एक्टिविटी से और हेल्प करता है इंडक्शन ऑफ ऑटोफैगी में। बैक 7 है, इट इज वेरी असेंशियल फॉर दी मॉलिक्यूलर चेपरॉन बाइंडिंग जैसे कि BIP2 एंड इट इज कंपोनेंट ऑफ अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स। सो दे आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट पीसीडी सच एज बैक 5 जो कि प्लांट सेनेसेंस को रेगुलेट करता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पीसीडी। प्लांट्स के अंदर टू मेन टाइप ऑफ पीसीडी को ऑब्जर्व किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चरल स्टडीज, वैक्यूलर टाइप पीसीडी और ऑटोलिटिक पीसीडी, एंड सेकंड इज हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स टाइप और नॉन ऑटोलिटिक पीसीडी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? ऑटोलिटिक पीसीडी जिसे हमने वैक्यूलर टाइप पीसीडी भी कहा है, इसे हम डेवलपमेंटल पीसीडी भी कहते हैं बिकॉज इसका डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नॉन एटलेटिक पीसीडी जिसे हमने हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स टाइप पीसीडी भी कहा है या फिर नेक्रोट्रॉपिक पीसीडी भी कह सकते हैं। मेजर डिफरेंस बिटवीन these two is autolytic PCD occurs by tonoplast rupture. रैपिड साइटोप्लाज्म क्लियरेंस कब होती है? जब टोनोप्लास्ट की रप्चर हो जाता है। और नॉन ऑटोलिटिक पीसीडी में सेल डेथ पहले ही हो जाती है टोनोप्लास्ट रप्चर होने से पहले। या तो टोनोप्लास्ट रप्चर होता नहीं है या फिर होगा तो सेल डेथ पहले ही हो जाएगी या फिर साइटोप्लाज्म क्लियरेंस रप्चरिंग होने से पहले ही हो जाएगा। ऑटोलिटिक पीसीडी की एग्जांपल है जो कि फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल जाइगोट, फॉर्मेशन इन एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग रूट एंड शूट डेवलपमेंट, इन एबायोटिक स्ट्रेस सच एज ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, hypoxia condition. So formation of parenchyma is a type of autolytic PCD. One major example is Gregory element differentiation. नॉन ऑटोलिटिक पीसीडी में टू मेजर एग्जांपल है, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स जो कि एक नेम से ही सजेस्ट होता है, एंड सेकंड इज एंडोस्पर्म इन सीरियल सीड जहाँ पे टोनोप्लास्ट स्ट्रक्चरिंग नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एंडोस्पर्म इन सीरियल सीड इज अ टाइप ऑफ नॉन ऑटोलिटिक पीसीडी। अगर हम इस डायग्राम को देखें so we can define three different type of cell death in plants. Apoptotic like cell death is nothing but the hypersensitive type or non-autolytic cell death जिसमें कि प्रोटोप्लास्ट श्रिंकेज होता है। हमने बात की थी कि हम नॉन ऑटोलिटिक पीसीडी को हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स पीसीडी भी कह रहे हैं जिसमें कि हमें पता है जब हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होता है तो आरओएस बढ़ जाते हैं, आरओएस के बढ़ने से इंड्यूस होता है पीसीडी। इसमें हमें टू मेजर चीजें देखने को मिल रही, प्रोटोप्लास्ट श्रिंकेज एंड आरओएस, जिसकी वजह से पीसीडी इंड्यूस हुआ है। सेकंड इज वैक्यूल मेडिएटेड पीसीडी at C option, you can see at C option, which is a type of autolytic PCD. इसमें वैक्यूल रप्चरिंग और टोनोप्लास्ट रप्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। टोनोप्लास्ट रप्चरिंग पहले कब होगी? अगर वैक्यूल बहुत ज्यादा स्वेल हो जाती है तो उसकी टोनोप्लास्ट रप्चर हो जाएगी। हम देख पा रहे थे टोनोप्लास्ट स्वेल हो रही है तो उसकी टोनोप्लास्ट रप्चर हो जाएगी और सारे लैक्टिक एंजाइम सेल में रिलीज हो जाएंगे जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म क्लियरेंस होगा या फिर सेल डेथ होगी। सो इसलिए हम इसे ऑटोलिटिक या वैक्यूल मेडिएटेड सेल डेथ कह रहे हैं। Senescence associated cell death it is linked with senescence cell senescence जो कि एजिंग प्रोसेस के साथ साथ होती है। Now if we talk about वैक्यूलर टाइप पीसीडी और ऑटोलिटिक पीसीडी तो इसमें हमने बात की व्हाट इज द मेजर रोल ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल की टोनोप्लास्ट इसमें रप्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो वैक्यूल है एज यू कैन सी इन द डायग्राम स्वेल हो गया है, स्वेल होने की वजह से इसकी टोनोप्लास्ट रप्चर हो गई है एंड सारे सेलुलर कंटेंट जो है एक बार अगर सेल में रिलीज हो जाए तो सेल जो है वो धीरे धीरे साइटोप्लाज्म क्लियरेंस शो करती है, मतलब सेलुलर कंटेंट डिग्रेड होने लगता है। न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो भी फ्रेगमेंटेड हो चुका है, ऑर्गेनेलीज भी फ्रेगमेंटेड हो चुके हैं एंड साइटोप्लाज्म क्लियरेंस हो जाता है एज यू कैन सी इन द लास्ट फेज ऑफ द डायग्राम। ये एक एग्जांपल है ट्रैकेरी एलिमेंट डिफरेंशिएशन का जिसमें कि अभी आपने देखा कि साइटोप्लाज्म क्लियरेंस हो गया है एंड धीरे धीरे सेकेंडरी वॉल की थिकनिंग बढ़ रही है जो कि इंपॉर्टेंट फीचर है इन द ट्रैकीड एंड वेसल फॉर्मेशन। सेकेंडरी वॉल की थिकनिंग हो गई है एंड साइटोप्लाज्म क्लियरेंस हो गया है जिससे कि एक डेड हमें सेकेंडरी टिश्यू या फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू फॉर्म होता है। वैक्यूलर टाइप पीसीडी इसे हमने डेवलपमेंटल पीसीडी भी कहा है क्योंकि डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है एंड इसका एग्जांपल अभी हमने जो डिस्कस किया है जाइलम ट्रैकेरी एलिमेंट डिफरेंशिएशन। ये और भी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को सपोर्ट करती है जैसे कि लीफ मॉर्फोजेनेसिस, लीफ सेनेसेंस, एम्ब्रियो ऑर्गन एंड टिश्यू मॉर्फोजेनेसिस,
make as sporogenesis formation, and colon and ovary duct and lenticephalus formation. वैक्यूलर टाइप पीसीडी जो है नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है एंड इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि जो वैक्यूल है वो रिपोजिटरी की तरह एक्ट करता है प्रोटीजेस, न्यूक्लियसेस एंड दूसरे लैक्टिक एंजाइम्स के लिए। जो वैक्यूलर सेल डेथ है वो मैनिफेस्ट होती है बाय ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम डिक्रीज होता जाता है एंड विद द concomitant increase in the volume of the lactic vacuoles and vacuoles का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जाता है। They get swell. After rupture from the chloroplast, engulfment of the cytoplasm occur and major cell dismantling mechanism occur during vacuolar cell death. Vacuole swells and chloroplast permeabilizes and ruptures, releasing hydrolases into the cytosol, which causes large-scale degradation. In many cases, cell wall is either partially or completely digested, such as in endosperm tissue. And cell wall degradation does not occur in the lignified secondary cell walls during the process such as tertiary element differentiation. Other morphological features जो कि vacuolar cell death में होते हैं such as condensation of cytoskeleton, nuclear envelope disassembly, nuclear segmentation जिसे हम karyoexis भी कहते हैं, rupturing of chloroplast जो कि प्रोटोप्लास्ट की क्लियरेंस करता है एंड फाइनली रिलीज ऑफ द लैक्टिक एंजाइम्स जो कि साइटोप्लाज्म क्लियरेंस कर देते हैं। हमने अभी इसका मेजर एग्जांपल पढ़ा था सेलोजेनेसिस और टर्टियरी एलिमेंट डिफरेंशिएशन जो कि एक एग्जांपल है ऑटोलिटिक पीसीडी का। टर्टियरी एलिमेंट जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है जाइलम के वो पीसीडी अंडरगो होते हैं जिससे कि हमें हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलता है और वाटर का ट्रांसपोर्ट हो पाता है। वाटर का ट्रांसपोर्ट होने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बने। हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनने के लिए पीसीडी इंपॉर्टेंट है जो कि साइटोप्लाज्म क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सेकेंडरी सेल वॉल थिकनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टोनोप्लास्ट रप्चर जो है वो एक्चुअल मोमेंट होता है सेल डेथ का क्योंकि वो फैसिलिटेट करता है वैक्यूलर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का रिलीज होने के लिए साइटोप्लाज्म में जिसकी मदद से ऑटोलिसिस होता है। हम ये देख रहे हैं कि जो वैक्यूल है उसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का एंड जैसे जैसे कि इसमें आरनीजेस भी है, डीनेजेस भी है, प्रोटीएजेस भी है जिन्हें हम वैक्यूलर प्रोसेसिंग एंजाइम्स कह रहे हैं। जब टोनोप्लास्ट डिसरप्शन हुआ तो ऑल दीज प्रोटीलाइटिक एंजाइम and RNases, DNases, nucleases are released within the cytosol and cytoplasm clearance occur, leading to a massive cell death and degradation. And धीरे धीरे cell secondary wall thickening side by side होती रहती है। This is again a similar representation of the process in which first autolysis and programmed cell death occur and secondary cell wall thickening also occur side by side. You can see all cytoplasm, chloroplast, mitochondria, nucleus get disappeared because of the chloroplast rupturing and degradation. Here is another example of PCD during fertilization, and these are the example of autolytic PCD, which plays a major role in development process. Self-incompatibility, which is a process to promote heterozygosity in plants, ये भी एक genetically controlled process है जो कि सेल फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है एंड इट प्रमोट्स हेट्रोजाइगोसिटी। तो जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है उसमें पीसीडी लाइक फीचर्स होते हैं जैसे एक्टिन डिपॉलिमराइजेशन, आरओएस सिग्नलिंग, कैस्पेस लाइक प्रोटीज एक्टिविटी एंड डीएनए फ्रैगमेंटेशन। ट्रांसमिटिंग ट्रैक्ट सेल डेथ जो होती है, ट्रांसमिटिंग ट्रैक्ट सेल डेथ क्यों होती है जिससे कि पॉलन ट्यूब एंटर कर सके टुवर्ड्स दी ओवरी और ओव्यूल। सो ट्रांसमिटिंग ट्रैक्ट जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है उसका पीसीडी हो जाता है फॉर सपोर्टिंग पॉलन ट्यूब ग्रोथ। यू कैन सी ऑल दिस इन द डायग्राम। टर्टियरी एलिमेंट डिफरेंशिएशन हम डिस्कस कर चुके हैं। लेटरल रूट कैप डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पीसीडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो रूट कैप होता है उसमें सेंट्रल कॉलुमेला होता है एंड पेरिफेरल लेटरल रूट कैप होती है। यू कैन सी इन द डायग्राम पेरिफेरल सेल्स आर कॉल्ड लेटरल रूट कैप। द कांस्टेंट साइज एंड लोकेशन ऑफ द लेटरल रूट कैप एट द क्विन रूट टिप, हमें एक कांस्टेंट साइज और लोकेशन रखने के लिए एक रैपिड सेलुलर टर्नओवर की जरूरत है एट द टिप ऑफ द रूट कैप। जो कंटिन्यूअस जनरेशन होता रहता है न्यू लेटरल रूट कैप लेयर्स का स्टेम सेल्स के थ्रू। तो अगर हमें कांस्टेंट साइज रखना है तो हमें एक कांस्टेंट टर्नओवर मेंटेन करना पड़ेगा जिससे कि कुछ जो सेल्स अगर रेगुलरली बन रही है लेटरल रूट कैप की तो कुछ सेल्स पीसीडी में भी जाएगी जिससे कि एक कांस्टेंट साइज मेंटेन रहे। सो
The continuous generation of the new lateral root cap layers is counterbalanced by tightly controlled developmental PCD that eliminates the cell at the root cap edge. So some cells are eliminated by PCD and some cells are added by stem cells proliferation. एरेनकाइमा फॉर्मेशन एक टाइप ऑफ ऑटोलिटिक पीसीडी है जो कि स्ट्रेस में इंड्यूस होता है जब लो ऑक्सीजन लेवल्स होते हैं। ये बेसिकली डिसअपेरेंस ऑफ कॉर्टेक्स या स्पिट सेल्स की वजह से होता है। जो पेरेन्काइमल सेल्स है उनमें लाइसोजिनस एरेनकाइमा बन जाता है जिसकी मदद से लार्ज एयरफिल कैविटीज बन जाती है जो कि सपोर्ट करती है फॉर प्लांट सर्वाइवल लो कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन में भी। जब लाइसोजिनस एरेनकाइमा बनता है तो लो ऑक्सीजन कंटेंट में भी वाटरलॉग प्लांट जो होते हैं वो सर्वाइवल और अडेप्टेड कंडीशन में रह सकते हैं। हम डायग्राम में देख सकते हैं एयर चैम्बर्स बन चुके हैं जिसकी मदद से एयरफिल कैविटीज ऑक्सीजन अपने अंदर रिजाइड करने में हेल्प करती है। जब हम रूट कॉर्टेक्स को अगर हाइपोक्सिक कंडीशन में रखें तो इथिलीन का एक्यूमुलेशन इंड्यूस करता है पीसीडी और ऑफ द कॉर्टेक्स या फिर सेल्स जो कि लाइसोजिनस एरेनकाइमा फॉर्मेशन करते हैं बाय एक्टिवेटिंग द जीन्स जो कि सेल वॉल डिग्रेडेशन करते हैं एंड पीसीडी इंड्यूस करते हैं। लॉस ऑफ टोनोप्लास्ट की रप्चरिंग, appearance of electron dense inclusion in nucleus, swelling and loss of organelles, thinning of the cell wall, and plasma membrane breakdown, protoplast clearance and breakdown are also important feature during this parenchyma formation. पीसीडी नॉन फंक्शनल मेगास्पोर डिजेनरेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, न्यूसेलस डिजेनरेशन में एंड डिग्रेडेशन ऑफ द टैपेटल लेयर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम आगे देखिए लीफ मॉर्फोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है पीसीडी का जिसमें कि हमें जो एजेस होती है वो बहुत डिफरेंट वे में देखने को मिलती है। कुछ किसी की एजेस सीरिएट होती है, स्मूथ होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो वेरिएशंस होते हैं दीज आर बिकॉज ऑफ पीसीडी जिसमें कि स्पेसिफिक सेल एलिमिनेशन होता है। अगर हम बात करें पीसीडी में एपोनेजेटॉन मेडागैस्केरियंसिस में हमें परफोरेशन देखने को मिलता है। इस परफोरेशन जो कि लीफ वेन्स के बीच में होता है ये एक फेनेस्ट्रेट पैटर्न कॉज कर देता है जिस लेस प्लांट के लीव्स में, इसे हम लेस प्लांट में कहते हैं। ये किस वजह से हो रहा है? ये पीसीडी की वजह से हो रहा है जो कि टोनोब्लास्ट रप्चर की वजह से होता है एंड इसलिए ये ऑटोलिटिक टाइप ऑफ पीसीडी है। इसमें हमें डीएनए फ्रेगमेंटेशन, चेंज इन न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी, साइटोप्लाज्म श्रिंकेज ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसका एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया एपोनेजेटॉन मेडागैस्केरियंसिस है जिसे हम मेडागास्कर लेस प्लांट भी कहते हैं। ये डेकोरेटिव एक्वेटिक प्लांट है जिसमें कि फेनेस्ट्रेटेड बैकग्राउंड देखने को मिलता है। पीसीडी प्रोसेस होता है बिटवीन द लीफ वेव्स एंड इसमें कि हमें देखने को मिलता है टोनोप्लास्ट रप्चरिंग, एक्टिन साइटोस्केलेटन ऑल्ट्रेशन, क्लोरोप्लास्ट एक्यूमुलेशन अराउंड द न्यूक्लियस, ऑटोफैगी, डीएनए फ्रेगमेंटेशन, activation of caspase-like proteases, and perforation creating a fenestrate pattern in the mature leaf plant is a very important example of the PCD in plants. Now here comes in another type of PCD which is hypersensitive response PCD or non-autolytic PCD. Here it is well differentiated from autolytic PCD by here is no rupturing of the tonoplast or cell that occurs before the rupturing of the tonoplast. The major thing is here protoplast shrinkage occur. Protoplast shrinkage occur and it lead to the rapid clearance of the cytoplasm. It occurs as a result of microbial attack or as a plant defense mechanism. Here, vacuolar content loss occur which lead to protoplast shrinkage and it is the earliest event which takes place in the HR type PCD followed by nuclear DNA degradation. Cell continues to contract due to water loss and all our organelles and membrane break down during their content releasing their content in the apoplast. They release all their content into the apoplast. Now, it is induced as a result of the abiotic response and successful recognition of pathogen during the hypersensitive response. It is found in cells which is challenged by necrotropic pathogens and induces necrotropic type PCD also. And it is also accompanied by features of vacuolar cell death sometimes. What are the cytological hallmarks which differentiate non-autolytic cell death from autolytic cell death? Mitochondrial swelling occurs. Absence of growing lytic vacuoles. In autolytic cell death, there are many growing lytic vacuoles leading to a large vacuole. There is no such growing lytic vacuoles. Early rupturing of plasma membrane occur leading to shrinkage of the protoplast and there are no lytic vacuoles that clear the cytoplasm. साइटोप्लाज्म क्लियरेंस अकर क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्मिक श्रिंकेज या फिर सेलुलर श्रिंकेज होता है।
कॉर्पसेस ऑफ सेल रिमेन लार्जली अनप्रोसेस्ड एंड जो शंकर प्रोटोप्लास्ट है वो बहुत इजीली डिटेक्टेड फीचर है एक प्लांट नेक्रोटिक सेल्स का जो कि एक नॉन ऑटोलेटिक टाइप ऑफ पीसीडी अंडरगो कर रही है। वैक्यूल जो है वो वाटर लूज करता है और जिसकी वजह से प्रोटोप्लास्ट श्रिंकेज होता है एंड न्यूक्लियर डीएनए डिग्रेडेशन होता है और फिर साइटोप्लाज्म क्लियरेंस होता है। सो कंटिन्यूड वाटर लॉस जो होता है वो साइटोप्लाज्म क्लियरेंस फाइनली कर देता है। इसमें हम देख पा रहे हैं हाइपर सेंसिटिव सेल डेथ जिसमें आरओएस इंक्रीज हो गए हैं जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग हो रही है। जो हमने एक फीचर देखा था माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग जो कि नॉन ऑटोलिटिक सेल डेथ का साइटोलॉजिकल हॉलमार्क है। माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग हो रही है, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट का डिसरप्शन हो रहा है, वैक्यूलाइजेशन जो है वो कम है या फिर एब्सेंट होती है, साइटोप्लाज्म श्रिंकेज हो गया है बिकॉज ऑफ वाटर लॉस एंड मेटाकैटाफेसिस एक्टिवेट हो रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं साइटोप्लाज्म क्लियरेंस को कर रहे हैं। अगर नेक्रोट्रॉपिक पैथोजन का सिग्नल होता है या फिर नेक्रोट्रॉपिक पैथोजन इंड्यूस कर रहा है बीसीडी को, सो इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बॉट्राइटिस सिनेरिया जो कि होस्ट सेल को किल करता है बाय रिलीजिंग टॉक्सिक मॉलिक्यूल सच एज बॉट्राइडियल एंड ऑक्सैलिक एसिड। ये होस्ट स्पेसिफिक टॉक्सिन है जो कि होस्ट को किल करने में मदद करते हैं। इसका अगर इन्फेक्शन होता है तो इंक्रीज ऑक्सीडेटिव बर्स्ट और इंक्रीज इन आरओएस स्पीशीज होता है जिसकी वजह से लिपिड पर ऑक्सीडेशन हो जाता है मेम्ब्रेन का एंड एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं बहुत सारे जो बन रहे होते हैं वो डिग्रेड होने लगते हैं धीरे धीरे इन सेल एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू सेल डेथ। मैकेनिज्म जो है इन ऑफ हाइपरसेंसिटिव रिस्पॉन्स सेल डेथ का वो है आयन फ्लक्स का इंक्रीज हो जाना। जैसे कैल्शियम आयन जो है साइटोसोल में उनका आयन इनफ्लक्स इंक्रीज हो जाता है, आरओएस स्पीशीज इंक्रीज हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन का डिस्ट्रप्शन हो जाता है ड्यू टू लिपिड पर ऑक्सीडेशन एंड ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स हो जाते हैं जिसकी वजह से क्रॉस लिंकिंग ऑफ फिनोलिक्स विद सेल वॉल कंपोनेंट, सेल वॉल के साथ क्रॉस लिंकिंग हो जाती है फिनोलिक कंपाउंड्स की, एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड जैसे फाइटोएलेक्सेंस जो होते हैं उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं एंड फाइनली पीसीडी इंड्यूस होता है। Here you can see the diagram. When a pathogen come, it releases a elicitor which induces a response in the cell, which increases calcium influx in the cell, leading to synthesizing nitric oxide. And increase in the reactive oxygen species again induces the pathogenesis-related protein synthesis, phytoalexin biosynthesis, HR response, synthesis of hydrolytic enzyme, finally leading to PCD. Here again, it is a localized cell death which induces a hypersensitive response, inducing finally PCD. सीरियल्स में जो स्टार्ची एंडोस्पर्म होता है उसमें नॉन लेटिक पीसीडी होता है आफ्टर सीड फिलिंग। जो आउटर मोस्ट एंडोस्पर्म लेयर होती है उसमें एलोरॉन जो है वो सर्वाइव करती है ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट एंड डाई होती है ओनली ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। एलोरॉन लेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजर्व होती है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन क्योंकि इसमें प्रोटीजेस हैं। यही प्रोटीजेस ही सिक्रीट करती है एंड हेल्प्स टू इन मोबिलाइजेशन ऑफ सीड रिजर्व एंड स्टोरेज फूड रिजर्व पीसीडी में। करेंटली प्लांट डेवलपमेंट में ऐसे 2 एग्जांपल है जिसमें नॉन ऑटोलेटिक पीसीडी होती है। फर्स्ट इज एंडोस्पर्म इन सीरियल सीड्स एंड सेकंड इज सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जिसमें कि टोनोप्लास्ट स्ट्रक्चर नहीं होती है या फिर सेल डेथ होती है तो टोनोप्लास्ट स्ट्रक्चर के पहले ही सेल डेथ हो जाती है। जो सीरियल्स में स्टार्ची एंडोस्पर्म सेल्स होती है ऑन द इनर साइड दे अंडरगो नॉन ऑटोलेटिक पीसीडी। जब सीड डेवलपमेंट या जर्मिनेशन होता है तो कुछ सेल्स नहीं बनती है और उसके साथ साथ कुछ जो सेल्स होती है उनकी डेथ भी होती है पीसीडी के थ्रू। जो इनर एंडोस्पर्म की सेल्स होती हैं उन्हें पीसीडी अंडरगो किया जाता है सीड फॉर्मेशन के वक्त। जो डेड एंडोस्पर्म सेल होती है वो इंटैक्ट रहती है और उनमें जो स्टोरेज मटेरियल है वो इंटैक्ट रहता है। वो स्टोरेज मटेरियल जो होता है उन्हें यूटिलाइज कर लेते हैं सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जो एलोरॉन लेयर है जो कि पार्ट ही है एंडोस्पर्म का पेरिफेरी पे वो हाइड्रोलिसिस एंजाइम सिक्रिएट करता है इन डेड एंड जो डेड इनर एंडोस्पर्म सेल है उनमें जिससे कि जो रिजर्व स्टोरेज मटेरियल है वो बाहर आ सके फॉर यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। एंड वंस जब ये एलेरॉन लेयर का पार्ट भी फिनिश हो जाता है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन एलेरॉन लेयर आल्सो अंडरगो पीसीडी। Up to seed germination, this aileron layer is viable and live. But after its role is finished, it also undergoes PCD. Reed starchy endosperm cells जो हैं, उनमें 2 main steps होते हैं, nucleus regeneration and subsequent denucleated cell development. First of all, the cell जो reed starchy endosperm death होती है, उसमें 2 main steps होते हैं. पहले सेल न्यूक्लियर डिजेनरेशन अंडरगो करती है एंड देन जो डीन्यूक्लिएटेड सेल है उसका डेवलपमेंट होता है। न्यूक्लियर डिजेनरेशन में क्रोमेटिन कंडेंसेशन, न्यूक्लियर एनवलप डिजेनरेशन एंड न्यूक्लियर रेसिड्यू फॉर्मेशन होते हैं।
जो कि पीसीडी के इम्पोर्टेंट फीचर्स है। उसके साथ साथ जो स्टार्ची एंडोस्पर्म है उसका भी डेवलपमेंट होता रहता है। आउटर मोस्ट जो एंडोस्पर्म लेयर है एलोरॉन, वो सर्वाइव करती है सीड जर्मिनेशन तक और उसके बाद ही डाई होती है या फिर पीसीडी अंडरगो करती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे स्टार्ची एंडोस्पर्म की सेल्स जो हैं वो surrounded by the aileron layer, and these aileron layers secrete hydrolysis into the starchy endosperm so that जो reserve material है storage food है वो mobilize हो सके during the seed germination. So aileron layer that is accompanied by seed germination sometimes. Aileron layer function by secreting hydrolysis. Both cysteine and aspartic protein acid proteinases are localized to vacuoles in the barley aileron, and the cell death in the aileron and endosperm cell during germination appears to involve autophagic vacuoles. Leaf senescence is also again an important cell death which is involved in aging. When a plant undergoes aging, it induces a specific metabolic changes or physiological changes so that cell continue to age and retrograde itself, will ultimately lead to PCD and cell death. There are various endogenous and exogenous environmental factors which induces senescence, such as ROS signaling promote senescence and age-induced PCD by the induction or upgradation of senescence-associated genes. Metacaspase activity increases during in senescence-leaving flowers. Factors like age of the plant, environmental changes, ethylene and other hormone promotes senescence in the leaf, and these are the senescence-associated gene or SSA gene which are involved in the senescence and leading to PCD of the plant organism.